So this was actually a very turning point of my life, a very difficult decision. ओके सो एमबीए हो गया आपका, जॉब आपको मिल ही रही थी, वो लकी इनफ वाइल नेटवर्किंग, बट ये बिजनेस वाला आइडिया एंड ट्रेनिंग वाला आइडिया कहाँ से आया? Because when I was doing my research, people told me that you should also start developing the IT part of it. आप क्या ऐसे कॉन्क्लेव में या ऐसे इवेंट्स में जॉब सर्च करने जाते थे? तो आप देखिए, उसने अपने लाइफ के 8 प्रेशियस इयर्स वेस्ट कर दिए। वेस्ट इसलिए कर दिए क्योंकि उसने जो कुछ भी पढ़ा है वो पूरा उसको कोई काम नहीं आएगा उसके फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचआर स्कूप। आज के इस एपिसोड में मैं एक ऐसे गेस्ट को लेकर आ रही हूँ जिन्होंने एज एन एचआर आईटी, स्टील एंड एजुकेशन इंडस्ट्री में काम किया मोर देन 15 इयर्स। अभी वो 5000 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं अराउंड मैनी थिंग्स लाइक टेक, नॉन टेक। लेट मी वेलकम मिस्टर सुबोध। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो जैसा मैंने हमारा जो डिस्कशन हुआ एंड यू टोल्ड मी अबाउट योर जर्नी एंड द ट्रेनिंग्स, सो how you started from HR to training, कैसे आपने start किया? So can you please just share your journey with us? Oh, definitely. So before we delve into this podcast, what I would like to, I would like to introduce you to two incredible individuals who actually shaped my life. My parents, Professor Dr. Manju Srivastav, she was principal Gus Degree College, and Dr. Ram Narayan Srivastav, who dedicated his career to national dairy development. I am also incredibly fortunate to have a beautiful wife, Nandita, and I'm blessed with a wonderful son, Sumedh, a very proud Indian. I have developed my expertise into management and human resource, a speaker, a motivator, and most important, a lifelong learner. Wow. Also, I am the founder director of Intred, and Intred is all about technology, training, and placement. Super. So how come, I mean, HR and then working in, MNCs like steel and education, also IT, or IT, मुझे लगता है down the line 5 years, it was on peak. Yeah. So how you took this like bold decision? Okay, so उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा मेरी जर्नी में, how I started. I started my career when I was doing my MBA. Okay. And before that, I was very passionate about army. So I was very crystal clear about my goal कि मुझे आर्मी में जाना है, और उसके लिए मैंने कर्नल सोनी से ट्रेनिंग ली. So I attempted more than 7 times. Every time I used to clear my written and my screening in, but unfortunately, life had some other plans for me. I could not make it in the army. But during my training, Colonel Soni taught me one thing, that always have plan B in your life. So वो एक ट्रेनिंग है जो engraved हो गई है, that for everything I need to have a plan B. And उसी समय मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि my plan B would be going into human resource, because मैंने अपने potential को पहचान लिया था, and Colonel Soni was the one who had actually helped me out identifying my potential. So when I was doing my MBA in human resource, I was also working. I was working with Liquid, which is a program run by BBC London. So we were actually training for voice and accent for companies like Dell, Genpact. When I completed my MBA, I was picked by National Steel. Okay. अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि picked by National Steel, कि उसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. That मैं एक सेमिनार अटेंड करने गया था, और बिकॉज आई एम क्वाइट एक्सट्रोवर्ट एंड आई कीप आस्किंग क्वेश्चंस, सो आई वाज वेरी एक्टिव इन द सेमिनार. एंड उसी समय क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द सेमिनार अ लेडी अप्रोच मी, लक्ष्मी मैम. सो शी टोल्ड मी एंड वी स्टार्ट स्पीकिंग एंड वी ऑलमोस्ट स्पोक फॉर एन आवर और सो. Next day I got a call from her that I'm calling from National Steel. Can you please come and meet me in the office? Wow. And
we decided a date. I went to National Steel, and to my surprise, she told me that you have an interview with the MD. So I was like, I am not even prepared for it. I just came from the office. So she's like, no, don't worry. We just fill up this form, and I filled the form, and I think MD took my interview for 2.5 minutes, and he said, कब से join कर सकते हो? कल से आ जाओ. Wow. So this is how I landed up with National Steel and Agro Industry Limited, which is a company of Ruchi Group of Industries. Okay. I worked with National Steel for almost more than 8 years. Wow. Into corporate, into factory, into works. It was an incredible experience. Then the second was IIM Indore. So now IIM Indore also, I went for a get together at Pitampur of the HR fraternity. Okay. And there I met Colonel Thamaya. Okay. So he spoke to me both of us were interacting for quite a long time. And after a week or so, I got a call from IIM Indore saying that, we would like to interview you. And the director then had started a program, IPM, Integrated Program in Management, which was a 5 years integrated program for the MBA students. So आपको मालूम होगा कि IIM में जो MBA होता है वो graduation के बाद 2 साल का होता है, but this program was for 5 years just after 12th. Okay. So the director wanted somebody to take over the IPM program who belongs to corporate. Okay. So I went, I gave interviews, and I was selected as the manager IPM, and I worked with IIM Indore also. Wow. So this is how it all went on, and then I worked there for almost 2.5 years. During the IMA conclave, I met Mr. Shishir Deshmukh. Okay. And the third call I got was from Diaspark Infotech. So they were actually looking for somebody into the human resources. आप क्या ऐसे कॉन्क्लेव में या ऐसे इवेंट्स में जॉब सर्च करने जाते थे? So, and then I went. I was interviewed at Diaspark Infotech, and I joined Diaspark Infotech. So I think all my jobs were because I was very active in networking. So networking plays a very important role when it comes to corporate. So I think that's very important thing which people should do. People should network. People should engage with others. And I think I am a burning example. मैं तो बहुत सारे कॉन्क्लेव में गई हूँ, आज तक एक भी इंटरव्यू कॉल नहीं आया मेरे पास. एनीवेज, सो जैसे आपने बोला प्लान बी, मैं तो मानती हूँ प्लान ए ही नहीं होता है लोगों के पास, आपके पास प्लान बी भी था. सो व्हाट इज, आई मीन यू गॉट द मेंटोर, दैट आई अंडरस्टैंड. सो प्लान ए, प्लान बी, कैसे ये आइडिया एट दैट टाइम, व्हेन एज अ स्टूडेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई थिंक एक बहुत अच्छे मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है. Okay. अगर मुझसे पूछा जाए कि आज भी या मैं प्लान बी क्यों बनाता हूँ, तो जैसे मैंने कहा था कि जो मुझे कर्नल सोनी ने सिखाया था वो एनग्रेव्ड हो गया है, दैट फॉर एवरीथिंग यू ऑट टू हैव प्लान बी. ओके. सो एट एनी स्टेज ऑफ टाइम you should have a mentor. Wow. And you should always ask. So I always keep telling my team also, everybody, that the best way to gain knowledge is ask. Superb. As you said while your journey, you was working while doing MBA, Yes, right? yes. Yeah, I heard it right. Yes, correct. Yes. So, do you really encourage Yes, MBA of course. करते टाइम जॉब करना चाहिए? Of course करना ही चाहिए, because मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन होने तक आप अपने कॉलेज लाइफ एंजॉय कर लीजिए, But अपार्ट फ्रॉम दैट आप सारी पढ़ाई भी कर लीजिए. MBA, I very strongly believe, should be always about being practical learning. okay. हम बोल ही रहे हैं मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो अगर हम मास्टर्स की बात कर रहे हैं तो unless until it is backed up by a practical knowledge, your MBA degree is not completed. So जॉब नहीं कर पा रहे हैं
तो इंटर्नशिप करिए, बहुत ज़रूरी है। 1 घंटे की भी इंटर्नशिप अगर आप कर रहे हैं रोज या वीकेंड्स पे एज एन MBA स्टूडेंट, वो आपको बेनिफिट देगी। Okay. But do you think it is injustice to the college? क्योंकि उन्होंने 2 साल का कोर्स बनाया है पढ़ाने के लिए एंड बच्चे फिर नो 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 नो, जो कोर्स बनाया गया है, अगर आप देखें कि जितने भी टॉप 20 स्कूल्स हैं, जितने भी टॉप 20 स्कूल्स जो कि MBA की ट्रेनिंग देते हैं, इंक्लूडिंग IIMs, वो भी प्रैक्टिकल लर्निंग को बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट करते हैं, फोकस करते हैं, और उनमें भी हर बच्चे को इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी होता है। No, internship is different, but job is different. The full-time job. आई नो। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक स्टेप बढ़ के अगर आप उसको जॉब कर पा रहे हो अपने MBA के साथ मैनेज करते हुए, तो नथिंग लाइक इट। बिकॉज मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरी क्लासेस हुआ करती थी 12:30 बजे तक। 12:30 बजे मैं निकल के आता था और 1 बजे से मैं अपनी जॉब पे चला जाता था, एंड 1 to 6 आई यूज्ड टू वर्क। अरे वाह। So it was not a full-time job. Okay. It was a half-day assignment which I used to do, but then I used to do. So basically, you was managing both. I was managing both college and job. All right. So if you are able to manage both the things, nothing like it. Else, internship should be part of your MBA curriculum. Right. Okay. So MBA हो गया आपका, जॉब आपको मिल ही रही थी, वो lucky enough while networking. But ये business वाला idea and training वाला idea कहाँ से आया? How you turn from IT industry to this field? So this was actually a very turning point of my life, a very difficult decision, and it was actually a little difficult time for the industry, entire IT industry. So what was happening is, because of the recession during those time, a lot of firing was going on, a lot of layoff was going on, and it was like, it was tickling me a little, this thing, that what am I? Am I a hiring manager? Am I an HR manager, or am I a firing manager? And I discussed it with my mother. So my mother said, it's okay if you want to leave the job, but what next? What is your plans? So I said that I am planning to open up a company. तब तो 2018 में स्टार्टअप्स वगैरह इतना फ्लैशी वर्ड नहीं यूज होते थे। तो मैंने बोला मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट शुरू किया जाए, जिसमें हम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पे ट्रेन करके, एक्चुअल टेक्नोलॉजी पे ट्रेन करके, वी मेक देम day one productive. Okay. So that when companies hire them, they don't have to train them on any technology. Just from day one, they can start working on the projects. Right. So then I spoke to few of my friends from the IT. I told them the idea. The idea was hit to them. They said yes, we could come as a trainer. We can volunteer as a trainer, and we can actually train them on actual technology and actual projects. But still, I was in a great dilemma because I was actually earning good, and I was on the peak of my career. Yes. So It's always difficult. It is always difficult, very difficult. And then I spoke to my mother, and she said, मैं हूँ ना, क्यों घबरा रहा है, अभी तो मैं हूँ, देख लूंगी। those were the words actually, जो मुझे लगा कि इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है मेरे पास कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। Wow. And then my father also said one thing, क्या होगा, फेल होगा ना, वापस नौकरी मिल जाएगी। मैं कहा हाँ मिल जाएगी, first then do it. Great. And then I did a lot of homework. Before putting up my papers, I did a lot of homework, Deepika, and it was just not a decision which I took overnight. I did a lot of homework, I did a lot of research, and finally when I was completely prepared, I put down my papers in 2018,
we came up with this company, Intred Services Private Limited. Okay. And we wanted to start it with training and placement, but we started with technology, training and placement. Wow. Because when I was doing my research, people told me that you should also start developing the IT part of it. So then we formed a small team of software developers. Okay. And we started with in 3 domains. Technology, so we were actually building mobile applications. Trainings, we were training into all sort of trainings, technical, non-technical, behavioral, skill development, you name it, and we were doing it. We are doing it right now also. Okay. And then into recruitment. Okay. So this is how Intred started. Wow. क्या challenges आए आपको पूरा ये journey start करने में? Because एक वो set job and then you know all of a sudden, though area was same, interest was same. बहुत सारा होमवर्क किया. ऐसा लगा कि कर लेंगे, बट जब प्रैक्टिकल करने गए तो बहुत सारे चैलेंजेस आए. और बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे आए कि जब आप कंपनी में रहते हो तो आपकी बहुत बड़ी टीम होती है और आप टीम से काम कराते हो, ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना. बट व्हेन यू स्टार्ट योर ओन, आपको सब कुछ अब खुद करना पड़ता है और वो स्क्रैच से करना पड़ता है. Right. सो सुबह उठ के ताला भी खोला है ऑफिस का, गंदा हो जाता था. जब तक ऑफिस बॉय नहीं था तब तक झाड़ू भी लगाई है, पोछा भी किया है, बिकॉज मैं अकेला था. एक ऑफिस ले लिया था, बट आई वॉज अलोन. Within a month, then I hired an office boy. Then I started hiring people. तब जाके थोड़ा थोड़ा काम डेलीगेट हुआ. अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी भी कोई डिसीजन ले तो किसी के भरोसे ना लें. क्योंकि आपको लगता है कि कॉर्पोरेट में बहुत सारे लोग आपको हेल्प कर देंगे, बट रियलिटी ये है कि कॉर्पोरेट में आपकी एक पोजीशन होती है जिसका रिस्पेक्ट होता है. True. जैसे ही आप वो पोजीशन से हटे, आप टेबल के उस साइड होते हो. And I felt that. और जैसे ही आप टेबल से हटे, आप पोजीशन से हटे, तो जो लोग आपको बहुत दुआ सलाम करते थे या जो बोलते थे कि हम हैं ना, वो सबसे पहले भागते हैं. सो डिसीजन लेने, ये चूंकि मैंने सेल्फ एक्सपीरियंस किया है, तो जो लोग डिसीजन ले रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको, अगर आप डिसीजन ले रहे हैं टू स्टार्ट समथिंग और टू हैव अ स्टार्टअप, डोंट थिंक कि ये मुझे मदद कर देगा, ये मुझे मदद करे. कंसिडर देम एज ऑप्शंस, बट ऑलवेज हैव प्लान बी. ऑलवेज हैव बी पीपल टू सपोर्ट यू. और भी बहुत सारी छोटी छोटी चैलेंजेस आई, बट देन यू नो. अच्छा, सबसे बड़ी बात जो कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़े. सो 2018 आई स्टार्टेड माय इंट्रेड एंड कोविड आ गया. कोविड में भी हमने सरवाइव किया. हमने वर्क फ्रॉम होम चलाया, हमने वर्क फ्रॉम होम सीखा कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें की. और अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो चैलेंजेस को ओवरकम करना ही आपकी लाइफ है. ओके. सो मैं देख पा रही हूँ जैसे आपकी जर्नी में बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा पूरा जर्नी रहा है आपका. 15 years, देन आपकी जो लास्ट 5 years की जर्नी है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. बट इसमें मैं देख पा रही हूँ कि आप एक फ्लो को फॉलो कर रहे हो. सो हाउ कम इट इज? जनरली ऐसा होता नहीं है. सो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दीपिका, दैट आई हैड सेट गोल्स इन माई लाइफ. आपको नहीं लगता ये गोल इतना गोल क्यों होता है? मेरे को आज तक समझ में नहीं आया. एंड एक्चुअली गोल होता क्या है? और ये गोल इतना गोल क्यों होता है? सो यू नो, काफ़ी बार ये मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि, और जब मैं इस पे ट्रेन करता हूँ
तो लोग बोलते हैं कि हमको हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स और बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि जीवन में गोल होना चाहिए, जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, और ये पिक्चरों में भी ये सारे ना डायलॉग्स बोले जाते हैं। मेरे ख्याल से गोल क्या होता है? गोल एक नॉर्दर्न स्टार है। इट इज दैट गाइडिंग स्टार ऑफ योर लाइफ। ओके। Goal is something which is going to guide you in your twists and turns of your life. It is going to define a purpose of your life. It is going to help you take actions. Okay. आपने बहुत सी बार ये शायद लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, या बहुत सी बार ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा जो कभी कुछ कर ही नहीं पाते, कुछ एक्शन ही नहीं ले पाते, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं होता है कि उनको करना क्या है। करेक्ट। और गोल जो है वो बेसिकली आपकी लाइफ को एक पर्पस देता है, इसीलिए इतना गोल है। इसलिए वो इतना गोल है। यस यस, मोस्ट डिफिकल्ट। सो आई मीन, कैसे डिसाइड करना चाहिए कि व्हाट शुड बी द राइट गोल ऑफ योर लाइफ, एंड बनाना कैसे चाहिए? गोल सेटिंग अगर हम बात करते हैं फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल, कैसे डिफाइन करोगे? तो अगर आपको गोल डिफाइन करना है तो सबसे पहली बात है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा लाइफ में। डोंट गो बाय द थ्योरीज। कपल ऑफ थिंग्स जो कि मैं प्रैक्टिकली मेरे स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ और जैसे उनको करना चाहिए। टू सेट अ गोल, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट thing is that you should be alone and in peace of mind. So when you are alone and in peace of mind, what are you doing? So you have to ask questions from yourself. Okay. What is my potential? आपने अगर अपना पोटेंशियल जान लिया, आप अपना गोल सेट करने की दिशा में आधा सफल हो गए। सो प्रॉब्लम तो यही आती है ना, पोटेंशियल कुछ और होता है, चले कहीं और जाते हैं। नहीं, तो उसी के लिए उसी वक्त आपको अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। पोटेंशियल भी अगर आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि व्हाट इज माय पोटेंशियल, तो उस पोटेंशियल को भी आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन है, ओके, व्हाट एम आई गुड एट, मैं किस चीज में अच्छा हूं, वेयर डू आई परफॉर्म माई बेस्ट, मैं कहां सबसे बेस्ट परफॉर्म करता हूं, मेरा इंटरेस्ट क्या है। ये 3 क्वेश्चन अगर आपने पूछ लिए और इसका सही जवाब आपने दे दिया अपने आप को, तो आप अपना पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर लो। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर पोटेंशियल, दैट मीन्स आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि किस एरिया में, किस सेक्टर में आप स्ट्रांग हैं। अब उस एरिया को आप अपने प्रोफेशनल करियर से डिफाइन करने की कोशिश कीजिए, उसको आप इनलाइन करने की कोशिश कीजिए। फिर आपको प्रोफेशनली और पर्सनली अपने 2 गोल्स डिफाइन करने हैं। वैसे तो गोल 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं उनकी अवधि जो होती है दैट इज 1 ईयर। सो टू अचीव short term goals, it should be achieved within 1 year. So those are short term goals, उनको annual goals भी बोला जाता है। Okay. And then there are long term goals जो कि within 5 years आपको अचीव करना है। Okay. Within और before 5 years. So जो आपका long term goal है उसके बेसिस पे आपके short term goals जो है वो डिफाइन होते हैं। तो इस तरह से आप अपने गोल्स को जो है डिफाइन कर सकते हैं। So for students and working professionals, I mean, उनको पहले तो गोल नहीं पता है। चलो, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि आज के इस सेशन को देख के एटलीस्ट स्टूडेंट को ये तो क्लियर होगा कि गोल्स होता क्या है। True. और कैसे डिफाइन करना चाहिए। सो डू यू थिंक कि स्कूल, कॉलेज, व्हाट्स द राइट टाइम, कब करना चाहिए, एंड किसको, स्टूडेंट्स को करना चाहिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स को करना चाहिए? So I will reply to this with an example. So whenever I go to trainings, प्रोफेशनल्स हो गए या कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए या इवन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स हो गए, सो आई आस्क देम व्हाट इज योर गोल, एंड मैक्सिमम टाइम द काइंड ऑफ रिप्लाई आई गेट इज बिजनेस करना है, जॉब करना है,
blah blah blah, right? So I always tell them that your goal ought to be SMART. SMART. Now I will come to that SMART goal later. इसके पहले मैं आपका ये जवाब दे देता हूँ कि when is the right time to decide a goal. And when is the right time to decide a goal, उसके लिए let me give you a burning example, live example. Okay. जो अभी पिछले हफ्ते हुआ है. Great. So I was recruiting for my company and we wanted to hire a software engineer. I got a resume. टेक्निकल टीम से पास होकर वो रिज्यूमे मेरे पास आया था, बट व्हेन आई वाज लुकिंग एट इट मैंने ये देखा कि उन्होंने 10th और 12th में बायोलॉजी किया है, बीएससी विथ बायोलॉजी, एमएससी विथ बायोलॉजी एंड कंप्यूटर्स, एंड देन ही केम टू मी फॉर इंटरव्यू ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सो आई आस्क्ड हिम दैट थ्रू आउट योर लाइफ यू हैव बीन स्टडिंग साइंस and now you want to join my company as a software engineer. So he told me कि 10th में कुछ समझ में नहीं आया तो 11th 12th में साइंस ले लिया, बायोलॉजी ले लिया. चूंकि 12th में बायोलॉजी लिया था, एक बार मेडिकल का अटेम्प्ट किया, हुआ नहीं तो बीएससी कर लिया. बीएससी के बाद एमएससी करना था तो एमएससी कर लिया. जब मैं एमएससी कर रहा था तब मुझे कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट आया. पर मैं सर आपको बताऊं, कंप्यूटर में मुझे बचपन से बहुत इंटरेस्ट था. तो फिर मैंने कहा कि मैंने सीनियर्स को देखा कि एमएससी करने के बाद कहीं जॉब तो लग नहीं रही है, या तो कॉल सेंटर में लग रही है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई लैंग्वेज सीख लूँ. तो मैंने जावा लैंग्वेज सीखी, और जब मैंने ये जावा लैंग्वेज सीखी तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया सर. और आज मैं 1.5 साल से जावा लैंग्वेज सीख रहा हूँ. मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए हैं और मैं अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ. अब आप सोचिए, अगर उस स्टूडेंट ने अपना ये पोटेंशियल 10th में आइडेंटिफाई कर लिया होता तो क्या होता. अब मैं आपको बताता हूं. 11th 12th 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, कितने साल हो गए? Almost 7-8 years. 7-8 years. 8 years he studied science. After 8 years he realized, 7-8 years he realized that he is good at computers. If he would have realized that in 10th, what he would have done, he would have taken maths as his subject, 11th 12th maths. He would have appeared for any engineering exam. BE computer science या BE IT करता 4 साल में, 6 साल में he would have been a software engineer. Agreed? Correct. और आज की तारीख में वो ऑलरेडी 4 साल एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता. Correct. तो आप देखिए, उसने अपने लाइफ के 8 प्रेशियस इयर्स वेस्ट कर दिए. वेस्ट इसलिए कर दिए क्योंकि उसने जो कुछ भी पढ़ा है वो पूरा उसको कोई काम नहीं आएगा उसके फ्यूचर में. सो द राइट टाइम टू चूज अ गोल इज 9th and 10th. Okay. If you are able to identify your potential and if you are able to identify कि इस पोटेंशियल के साथ मैं क्या फ्यूचर, मेरे पास क्या फ्यूचर ऑप्शंस है, क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आई थिंक आपने अपनी लाइफ की आधी जंग जीत ली. So 9th and 10th is the right time to define your goals, because then you choose the subjects and based on the subjects everything depends. So you mean to say school is the right time. School is the right time to define your goals. But कोई, मुझे तो नहीं लगता, मतलब मेरे टाइम में तो नहीं सिखाया जाता है स्कूल में, एंड मुझे लगता है शायद आज भी स्कूल में कोई गोल सेटिंग की क्लास तो नहीं होती है, if I'm not wrong. No, I have been taking goal setting sessions in almost all the schools, and I have been training students who are in 9th and 10th. Not only I have been training how to set the goal, also I am giving them career options कि अगर आप कॉमर्स लेते हो तो क्या करियर ऑप्शंस है, मैथ्स लेते हो तो क्या करियर ऑप्शंस है, बायोलॉजी लेते हो तो क्या करियर ऑप्शंस है. सो I would insist teachers, parents that this is the right time when you should actually train your child that you have to set your goals.
बट ये प्रिविलेज मुझे लगता है टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के बच्चों के पास नहीं है, एंड दे कैन नॉट गो फॉर सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स, एंड आई थिंक बहुत बड़े स्कूल्स और बहुत अच्छे स्कूल्स शायद इन ट्रेनिंग्स को अफोर्ड कर पाते होंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो उन स्टूडेंट्स को जो हमारी एक्चुअल टॉपर तो कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज स्टूडेंट्स, हमारे जैसे स्टूडेंट्स लाइक मी, माई टाइप स्टूडेंट्स, उनके लिए वो कैसे अपना गोल सेट करें? देयर इज नो ट्रेनिंग, देयर इज नो अवेयरनेस, देयर इज नो क्लासेस, देन हाउ दे शुड अंडरस्टैंड वेयर टू गो. एंड जो आपने एग्जाम्पल दिया कि वो 8 साल अगर बर्बाद नहीं होते तो वो आज एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता. So let me tell you a secret. I have never topped in my life. Okay, so like us. So like us. And I very strongly believe कि जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. I don't know why. धक्के खा खा के सीखे हुए रहते हैं शायद इसलिए. Yes. एंड जहाँ तक टियर 2 स्टूडेंट्स की बात है कि जो टियर 2 सिटीज़ में रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज की टाइम पर इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सिर्फ राइट क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता है. आपके पास हो सकता है कि फिजिकल ट्रेनर अवेलेबल ना हो, बट आप अगर जाके सिर्फ यूट्यूब पे जाके सिर्फ ये पूछ लेंगे व्हाट आर करियर गोल ऑप्शंस फॉर अ 10th क्लास स्टूडेंट और फॉर अ 9th क्लास स्टूडेंट्स, आपको इतनी इंफॉर्मेशन निकल कर आ जाएगी. एटलीस्ट हैव दैट इंफॉर्मेशन. Okay. Because only when you will have information you will be able to decide something. True. So for those people who think कि हम छोटे गांव से हैं, छोटे शहर से हैं, आज के टाइम पे इंटरनेट is accessible to everybody. True. Instead of spending time on a lot of time on the social media, you can ask correct questions and you will get correct answers. Correct. And this is how actually you can utilize it. So आप अगर ऐसा बोल रहे हैं कि छोटे शहर, तो मैं तो my mother was posted in Shahjahanpur, Okay. which is a town 100 kilometers away from Indore, a small town, a very small town. So because my mother was posted, I was with my mother. Okay. So we also got mentorship. We also because we were curious to know things. True. So I think I'll suggest students that they should be curious and they should set their goals. Okay. So goal setting के ऊपर एक बहुत अच्छी बात है कि goals ऐसे set कीजिए कि goals which are your dreams, goals which are your dreams, and dreams which will not let you sleep. Wow. So अगर इस तरह के गोल आपने सेट कर लिए तो आई थिंक आपको लाइफ में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता. Wow. आप स्मार्ट गोल्स का कुछ बता रहे थे, व्हाट इज इट? हाँ, स्मार्ट गोल्स की अगर बात करें हम, तो स्मार्ट गोल्स में क्या होता है कि जब भी हम पूछते हैं लोगों से कि क्या गोल है आपका, तो लोग कहते हैं कि बिजनेसमैन बनना है, नौकरी करना है, और मैं उनको हमेशा बोलता हूँ आपकी लाइफ में स्मार्ट गोल्स होना चाहिए. गोल्स के साथ साथ गोल होने तो चाहिए, पर गोल कैसे होने चाहिए? स्मार्ट गोल्स होने चाहिए. तो स्मार्ट गोल्स में क्या हो गया? SMART. तो S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक. जब मैं कोई मुझसे ये कह रहा है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो आई आस्क देम कैन यू बी स्पेसिफिक, क्या बिजनेस करना चाहते हैं? जब आप मुझे ये बता पाओगे कि किस चीज का बिजनेस कर रहे हो, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इज इट मेजरेबल, यानी क्या उसकी सक्सेस डिग्री है, क्या मैं उसके सक्सेस को मेजर कर सकता हूं. ओके. फिर मैं आपसे पूछूंगा कि जो आपने गोल डिफाइन किया है क्या वो अटेनेबल है, क्या मैं उसको अटेन कर सकता हूं. मतलब आज अगर मैं ये बोलूं कि मैं कल फरारी खरीद लूंगा, तो क्या मैं खरीद पाऊंगा? नहीं. तो क्या जो मैं गोल अपना डिफाइन कर रहा हूं वो अटेनेबल है, अचीव किया जा सकता है? रियलिस्टिक. सो रियलिस्टिक इन द सेंस रियलिस्टिक एंड रेलेवेंट. तो जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, क्या मेरा गोल उसी दिशा में है? ऐसा तो नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूं किसी और चीज की और गोल मेरा किसी और दिशा में है. तो जो मैं गोल सेट कर रहा हूं, अगर मैंने वो गोल सेट कर लिया है और मैं गलत दिशा में पढ़ाई कर रहा हूं, तो मुझे एक बोल्ड डिसीजन लेके मुझे सही दिशा में जाना पड़ेगा. आई हैव टू चूज अ राइट करियर, राइट कोर्स फॉर मी. राइट.
जो मुझे मेरे गोल की तरफ ले जाए. Okay. And time bound. Last, most important, a goal cannot be infinite. It ought to be time bound. और जैसा मैंने ऑलरेडी बताया था, जो लॉन्ग टर्म गोल होता है, that ought to be finished within 5 years. Okay. So the students and I mean, there is a difference between student goals and career goals, like for working folks. I don't think so. There's much difference. Only thing is जो गोल की जो प्रायोरिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए गोल जो होता है वो होता है या तो अपना खुद का स्टार्टअप करना या एक किसी स्पेसिफिक कंपनी में जॉब पाना. और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आई कैन स्टार्ट माय ओन स्टार्टअप, या मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए और उसके बाद मैं अपना खुद का खोल सकता हूँ, या 5 साल में मैं अपने आप को एक लीड पोजीशन पे या फिर मैनेजरियल रोल पे देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. और अगर मुझे लीड रोल पे जाना है तो आई हैव टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज, राइट. सो व्हाट डू आई डू टू डेवलप माय लीडरशिप क्वालिटीज? दिस इज ऑल आई हैव टू. So, I mean, do you think like goal setting can help to get the dream job? Only goal setting will help you to get the dream job. Okay. अगर most of us do not have goal, consider that. गोल सबके होते हैं, ओनली थिंग इज वो डिफाइंड नहीं होते हैं. Okay. छोटी सी बात है, आज मुझे इस पॉडकास्ट पे आना था, मेरा आज का गोल क्या था? यहाँ आना, राइट. आपके साथ बातें करना, पॉडकास्ट करना. Was that not a goal? एग्जैक्टली हमें अपने लाइफ गोल्स को डिफाइन करना है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि छोटी छोटी चीजें भी जो हम करते हैं वो एक गोल को अचीव करने के लिए ही करते हैं. करेक्ट. बस उसको हम अगर डिफाइन कर लें तो हम फोकस्ड हो जाएंगे और हमको सही डायरेक्शन मिल जाएगा. ट्रू. आपने बोला स्मार्ट, लाइक टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड. ओके. सो अगर मैं बात करती हूँ गोल सेटिंग, वो तो हो गया. चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं सबका गोल सेट हो गया. नाउ आई विल कम ऑन टाइम मैनेजमेंट और टाइम बाउंड. सो डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू मैनेज द टाइम? एंड बिकॉज सबके पास घड़ी से 24 घंटे ही होते हैं, कुछ लोग फोड़ देते हैं और कुछ लोग फूट जाते हैं. सो व्हाट इज दैट? नो, टाइम मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल. टाइम मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल. एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता. ओके. टाइम, समय अपनी गति से चलता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता है. ट्रू. तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता. हाँ, सेल्फ मैनेजमेंट हो सकता है. ओके. एंड सेल्फ मैनेजमेंट ऐसे हो सकता है कि आप मैक्सिमम अपने आप को इस तरह से मैनेज कीजिए कि जो आपको अलॉटेड टाइम मिला है 24 घंटे का, उसमें से आप कितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं. ओके. सो ये जो कंसेप्ट है टाइम मैनेजमेंट, उसको मैं ऐसे कहूँगा कि इट शुड बी सेल्फ मैनेजमेंट. क्योंकि अगर आपने अपने आप को मैनेज कर लिया तो आई थिंक सारी चीज़ें, जंग जीत लिया. करेक्ट. बट मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग्स, जैसे आप इतना सारा ट्रेनिंग देते हो, ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं. 2-3 दिन का भी ट्रेनिंग सुन के बच्चे 2-3 दिन के लिए तो बहुत मोटिवेट हो जाते हैं. उसके बाद जस्ट फिर वही जैसा परसों था हम वैसे ही चलेंगे, वही करेंगे. गोल सेटिंग पढ़ लिया, समझ लिया, गोल सेट भी कर लिया, टाइम मैनेजमेंट पढ़ लिया, टाइम सेट कर लिया, कल से आई विल डू इट. सो वो कैसे इम्पैक्ट कैसे आएगा? आप उसको ऐसे हम बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट के लिए ना 100% एक ट्रेनर जिम्मेदार होता है. ओके. वो कैसे? स्टूडेंट्स नहीं होते? मैं आपको बताता हूँ. ओके. या उसको हम कहें कि 90% एक ट्रेनर और 10% जो है वो ट्रेनीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अगर आप जो टॉपिक पे ट्रेन कर रहे हो उसको अगर आपने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है और आप अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उस ट्रेनिंग में शेयर कर रहे हैं, आई गारंटी, आई वाउच, इट विल लीव एन एनग्रेविंग इंप्रेशन ऑन द ट्रेनीज.
बट मैक्सिमम ट्रेनर्स जस्ट टू गेट अ ट्रेनिंग एंड जस्ट टू गेट अ मनी वो कोई भी टॉपिक पे ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कॉलेज ने बोला, कॉर्पोरेट ने बोला इस पे ट्रेन करना है, हाँ ट्रेन कर देंगे। गए गूगल से टॉपिक निकाले, थ्योरी को पीपीटी में कन्वर्ट किया और पहुंच गए पढ़ाने। थ्योरी पार्ट तो आपने बहुत करेक्ट पढ़ा दी, आपने उसमें थोड़ा सा मोटिवेशन डाल दिया, थोड़ा सा ह्यूमर डाल दिया, वो जो 2 घंटे हैं वो परफेक्ट बना दिया आपने। बट जब आपने अपना खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया तो वो ट्रेनिंग कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूं कि एवरीबडी कैन नॉट बी ट्रेनर, राइट। सो ओनली इफ यू कैन शेयर योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस एज अ ट्रेनर you are a good trainer. What kind of students you have seen so far? Like एक होते हैं सेल्फ ड्रिवन जो ट्रेन किया, सीख गए और इम्प्लीमेंट भी कर लिया। तो स्टूडेंट्स में भी डिफरेंस होता है ना, डिफरेंट, बिकॉज यू आर ट्रेनिंग मे बी 50 स्टूडेंट्स और 100 स्टूडेंट्स, सब तो एक जैसा परफॉर्म नहीं करते। Right. What kind of students you have observed? I am quite disappointed with the kind of student nowadays, I'll be very open and very true onto it. And मैं बहुत सच बोल रहा हूँ आपको, right? So I have been training across. So me. एक तो आजकल क्या हो गया, पेशेंस खत्म हो गया है बच्चों में। So for everything you need patience to learn. Now what people want is, what students want is कि आप तो हमें सर्टिफिकेट दे दो। वो सर्टिफिकेट अपने रिज्यूमे में दिखा देते हैं, बट जब वो रिज्यूमे जाता है एक रिक्रूटर के पास, वो रिक्रूटर एक सवाल पूछता है और उसमें वो समझ जाता है कि ये जो है ये एक फेक सर्टिफिकेट है, कुछ आता नहीं है, कुछ आता नहीं। तो पेशेंस की बहुत कमी हो गई है, वो सीखना नहीं चाहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हर कुछ 30 सेकंड वाली रील है, जबकि ऐसा नहीं है। तो आज के स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो MBA फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, दीपिका, कितनी बार मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, क्या बनोगे, और 100 में से 80-85 स्टूडेंट्स जो होते हैं, दे डोंट हैव एन आंसर टू इट। द रेस्ट वुड से समथिंग विच इज ईदर कॉपी पेस्टेड, और मेरे ख्याल से मुश्किल से 5% ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत क्लियर होते हैं दैट व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ। So for students, I want to tell them that it is high time that they should have their goals in life. To achieve the goal, they should learn time management. Time management में भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो सीख सकते हैं और अपने गोल को अचीव करें। तो हमने गोल सेटिंग की बात की, टाइम मैनेजमेंट की बात की, इसके बेनिफिट्स के बारे में बताइए आप। बेनिफिट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें। डायरेक्शन है, क्लैरिटी है, फोकस है, पर्सनल ग्रोथ है, कॉन्फिडेंस है, हैप्पीनेस है, बेटर रिलेशनशिप है, हेल्थ है, वेल्थ है, यू कैन बिल्ड योर ओन लेगेसी, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इतने सारे बेनिफिट्स हैं इफ यू आर एबल टू जस्ट डिफाइन योर गोल एंड अचीव इट। सुपर। मुझे लगता है आज का जो ये हमारा डिस्कशन है, जितने भी बच्चे देखेंगे उनको एटलीस्ट स्कूल में हो, कॉलेज में हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, कोई भी हो, उसको एटलीस्ट गोल सेटिंग में तो हेल्प मिलने वाली है। यस, डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।